Jai Hind, everyone. Give me thumbs up if you can see me, hear me. Today is a very, very special live. Great. Hello, Ankush. How are you? Sheena. I'm so glad to see all of you. Mystic Soul. Hi. Samar Joshi. Wonderful. आज का लाइव बहुत स्पेशल है, बहुत खास है. Today we have an amazing personality with us. We are going to begin very soon. और ये conversation आप miss नहीं कर सकते. So if you know somebody who has still not logged in, फटाफट मैसेज करिए उन्हें और बुलाइए. आज का ये सेशन यादगार होने वाला है, इंस्पायरिंग होने वाला है, मोटिवेटिंग होने वाला है, बिकॉज वी हैव लेफ्टिनेंट जनरल टाइनी ढिलन विद अस. ही इज अ ह्यूज पर्सनैलिटी और आज हम उनसे बातें करेंगे, जानेंगे कुछ उनके बचपन के बारे में, कुछ उनकी एकेडमी डेज के बारे में. व्हाट मेक्स हिम द मैन दैट ही इज. ग्रेट. एक तो मुझे तुम लोगों के नाम बहुत मजेदार लगते हैं भाई. एक बार आई कैन नेवर फॉरगेट दैट नेम, ब्राउन कॉकरोच. दैट वाज वन ऑफ द नेम्स. तो भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है. अनुज चौधरी, awesome मैम. Yes, it is going to be an awesome session. And yes, it is 7 p.m. We are going to begin the live. लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी इस पर्सनालिटी को जिनके लिए आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं. लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल. मतलब सुनकर ही एकदम छाती चौड़ी हो जाती है कि क्या पर्सनालिटी और क्या रॉबीला इंसान है ये. जनरल ढिल्लोन इज फॉन्डली नोन एज टाइनी ढिल्लोन. आज हम उनसे जानेंगे कि उनको यह नाम कैसे मिला और किसने दिया. He was commissioned into 4 Rajputana Rifles in December 1983. He commanded 15 Rajputana Rifles. He's an alumni of National Defense Academy. He's graduate of Defense Services Staff College, Wellington. He has attended Senior Command Course, Higher Command Course, prestigious NDC course. And he has also attended Senior Officer Course at Center for Superior Studies of National Defense in Madrid, Spain. And Senior Executive Course on Transitional Security Cooperation at Asia Pacific Center for Security Studies at Honolulu, Hawaii, USA. He has served total of 8 tenures in counterinsurgency and counter-terrorism operational areas, out of which 6 have been in Kashmir Valley only. What tenure, what life, what challenges. He has been an instructor at Infantry School, Mau, and abroad. The General Officer has had 4 tenures in Perspective Planning Directorate, dealing with future strategies of Indian Army and preparation of 15 long years term perspective plan. माने आज जो हम फौज देख रहे हैं और आगे आने वाले सालों में जो हम फौज देखेंगे, उसकी प्लानिंग, उसका रुख डिसाइड करने में जनरल ढिल्लन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. यह हमारी खुशनसीबी है कि वो यहां हैं और आज हम सबके सवालों का जवाब देंगे. यस, यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस, लेकिन ध्यान से उनकी सारी बातें सुनिएगा. ही इज अ मैन हु हैज सीन द वर्ल्ड. और क्या आपको पता है दैट ही वॉज कमांडिंग 15 कोर, that is in Srinagar,
during the most challenging environment of Pulwama IED blast. याद है ना आपको, जब हमने अपने 4 बहादुर सीआरपीएफ के जवानों को खोया था? He was at the location at that time. He was also the corps commander when abrogation of Article 370 and 35A took place. क्या challenges रहे होंगे? Yes, Anuj Chaudhary, he is the king of Kashmir. आज हमारी खुशनसीबी है कि वो यहां हम सबके साथ बातचीत करेंगे. Living legend, yes, Ankush Kondal. Very soon, I am going to invite him and we will be having a conversation. एक मिनट. Fine. So I am going to wait. He's shortly going to join us. तब तक आप मुझे बताइए आपके क्या सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं जो आप लोगों ने मुझे डीएम किए थे. और आज के सवालों में से आई विल पिक एंड चूज फ्यू क्वेश्चंस एंड आस्क हिम. ओके? Yes, Ankush Ranjan Nanda can't wait to listen to his words. Yes, Pranjal Singh, he has a lot of experience. And today, he's going to be here with us. So, let us अच्छा, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मैम हमको इस लाइव में ऐड करें. आई एम वेरी सॉरी, आज मैं आपको लाइव में ऐड नहीं कर पाऊंगी. मेरे हर लाइव में आप ऐड होते हैं, लेकिन आज नहीं. आज का दिन कुछ अलग है. ओके, सो लेट मी ट्राई एडिंग हिम एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ज्वाइन. So I have invited him and let us see. He will be here shortly with us. Yes, he will be giving message to all of you. Don't worry. Okay. Let us just wait for him to join us. You want to know कितने गाजी आए, कितने गाजी गए? What is the significance about it? बिल्कुल जानेंगे हम इस बारे में. How to improve communication? Yes, that is also one of the questions. So just be on the live. Do not miss it. And let us see. Okay. I have invited him. Let me. Okay. If you just give me a second. Okay. He is unable to join. Wait, he will rejoin. Let me invite him again. नेटवर्क है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं. Good evening, sir. Jai Hind. Good evening, everyone, and good evening, Captain Yashika. How are you? सर, आज तो थरथराने वाला है आसमान. आज तो इतने जोश में है बच्चे और मैं इतने जोश में हूं कि we are all trying to match your energy, sir. Thank you, and good evening to everyone. Good evening, sir. Sir, what a day. Today, from Indian Military Academy, 344 cadets have passed out and joined this organization of Indian Army. और आज आप इधर हैं, सर, और कितने डिफेंस एस्पिरेंट्स को आप मोटिवेट करने वाले हैं आज. This is a historic day. Thank you. Welcome, sir. Welcome. Sir, you are a role model for everyone who is here. आपकी फैन ब्रिगेड बहुत तगड़ी है और मैं तो लीड कर रही हूँ आपकी फैन ब्रिगेड को आज. Thank you. And before we start, I would like to say good evening, welcome, and thank you to everyone who joined live today with Captain Yashika. Let's have a fun-filled session today. Absolutely no yes, hold sir. barred. And Yashika, please no hold barred, sir. All the questions if they have. सर, ये आपने बहुत खतरनाक परमिशन दे दी है क्योंकि अब तो मजा आने वाला है, सर. Yes. And we really want to know the human face behind this tough exterior, sir. See, every soldier looks very tough,
on the outside because he has been physically mentored to be tough and mentally also very strong. But all having said and done, inside he is a human. He is a son, he is a brother, he is a father, he is a colleague, he is a friend. And जो दूसरों की भावनाएं हैं, जो दूसरों के fears हैं, जो strong points हैं, जो negative aspects हैं, वो एक soldier में भी है. At the end of the day, soldier comes from the society. He is as good as the society he comes from. जिस समाज से एक सैनिक आता है, वो उस समाज का एक हिस्सा है. उसी समाज की तरह है. जितने बच्चे आज सुन रहे हैं, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ. It is just that कि मेरी ट्रेनिंग और जब मेरा एक्सपीरियंस शायद उनसे ज्यादा है, लेकिन जैसे भी आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे से हो नहीं रहा था, तो टेक्निकली उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है. सो कहीं ना कहीं वो मुझसे बेहतर है, तो आई कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट. सर, जो बच्चे सुन रहे हैं वो बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपका चाइल्डहुड कैसा था सर. हाउ वाज योर अर्ली लाइफ, हाउ डिड यू ज्वाइन एकेडमी, किसने आपको मोटिवेट किया सर फौज ज्वाइन करने के लिए, और शुरुआती दिनों में आपके रोल मॉडल्स कौन थे सर? Okay, so many questions in one question. Now this is called art of organization. Okay, देखिए मेरी चाइल्डहुड, मैं कोई आसमान से उतरा वो बच्चा नहीं था. मेरी चाइल्डहुड बिल्कुल एक मामूली बच्चों की जैसे होती है वैसी थी. मैं भी अपनी जो मैंने किताब भी अभी लिखी, उसमें मैंने अपनी चाइल्डहुड 3 साल की उम्र से शुरू की है नरेशन करनी, ताकि बच्चों को मालूम पड़े कि कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप फ्रॉम द डेट ऑफ योर बर्थ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन. नो, फेलियर्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, आप गिरते हो, गिर के संभलते हो, संभल कर उठते हो, उठ के उड़ते हो. वो हिम्मत है. सिर्फ ये कहना कि नहीं वो तो बहुत कामयाब इंसान है, उसने तो जिंदगी में बहुत मुकाम हासिल किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है उसने दुख नहीं देखे, उसने फेलियर्स नहीं देखे. एंड कमिंग टू कि चाइल्डहुड कैसी थी, यस, मैं बचपन में अपनी क्लास में फेल हुआ हूँ. मेरे भी 100 में से 10 नंबर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले एग्जाम के लिए मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल एकदम अपना मोरल लो करके बैठ जाऊंगा. जो जो चैलेंजेस आए उनको ओवरकम करके अगले चैलेंज के लिए अपने आप को मेंटली, फिजिकली, मॉरली एंड फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू तैयार किया. और ये बात समझनी बहुत जरूरी है, जितने भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं. एक फेलियर, जहाँ एक गलती does not decide your lifetime. It is just one bad chapter in your book. Go to the next chapter. That is a marvelous one. And coming to the role models. देखिए रोल मॉडल्स चेंज होते हैं. जब आप छोटे बच्चे होते हो, आपका स्फीयर ऑफ इंटरेक्शन जो है बहुत छोटा होता है, आपका माँ बाप के साथ में, भाई बहन के साथ. तो आप उनमें से किसी को आइडलाइज करते हो, शायद अपने मदर को या फादर को, या एल्डर सिबलिंग को. जब आपका स्फीयर थोड़ा बड़ा होता है, आप स्कूल जाते हो, तो आप किसी टीचर को पसंद करना शुरू करते हो. यू वांट टू बी लाइक हिम और हर. When you go out to the university or in a bigger circle, or you start working, then you idolize someone who is a very professional worker, professional boss, or a professional peer or colleague. So role model change होते हैं, लेकिन जो idols हैं वो शायद नहीं चेंज होते. वो क्योंकि एक जगह बना लेते हैं आपके दिमाग में. लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो बचपन से मुझे इंस्पायर करते थे. मैं उनको देखता था, उनकी स्ट्रगल को देखता था, उनकी मोटिवेशन को देखता था, उनकी डिटर्मिनेशन को देखता था. जिन हालात में उन्होंने अपने आप को देश का लीडर की तरह एक उजागर होकर सामने आए, सो वो मुझे इंस्पायर करती थी. तो मे बी दैट्स व्हाट आई विल कॉल एन आइडल. रोल मॉडल्स चेंज होते हैं, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज सेलेक्ट योर आइडल्स और रोल मॉडल्स वेरी वेरी केयरफुली. Don't go for the flashy things, go for the concrete things. Sir, very poignant words. आजकल हम इतनी सारी चीजों से एक्सपोज होते हैं. इंटरनेट इज कॉन्स्टेंटली फीडिंग अस सो मेनी थिंग्स कि बहुत आसान हो जाता है डिस्ट्रैक्ट हो जाना, बहुत आसान हो जाता है शॉर्ट टर्म गोल्स को देखना. बट व्हाट यू हैव सेड इज गोइंग टू बी विद दीज यंग वंस दैट फ्लैशी थिंग्स के पीछे नहीं जाओ, कॉन्क्रीट थिंग्स के पीछे जाओ. कॉन्क्रीट से फाउंडेशन बनती है सर, दैट दे आर गोइंग टू हैव a very strong life and strong foundation. Sir, academy तो alma mater है सर.
academy, NDA days, and it transforms. एक बार अकेडमी के अंदर हम पहुंचते हैं और जब बाहर निकलते हैं सर तो अपने माँ बाप ही नहीं पहचानते, बिकॉज दैट इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. उस समय की दोस्ती, उस समय की फ्रेंडशिप, ट्रेनिंग में रगड़े के दौरान जो बॉन्ड क्रिएट होता है सर, हु नोज इट बेटर देन अ फौजी. और बाद में लाफ्टर ही लाफ्टर होता है सर. वो चीजें याद करते हैं, हमेशा एक स्माइल मुंह पे आती है. Drill Ustad, sir, I remember when I was in academy, my drill Ustads would call me potato size because I was so short. Sir, आपके drill Ustad आपको क्या बुलाते थे? They used to call me Khamba type. Sir, आपका नाम Tiny कैसे पड़ा sir? You are so tall. Sir, how tall are you? I am 6 feet 3 inches. Sir, तो Tiny क्यों? ये जब मैं कमीशन होके, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई ये पूछता है. और इनफैक्ट कल हम एक फंक्शन में थे तो वहां पे कुछ लेडीज बैठी थी, उन्होंने भी सबसे पहले यही सवाल किया. ये मेरी यूनिट में, जब मैं अपने एकेडमी की बात की, जब एकेडमी से कमीशन होके मैं अपनी यूनिट में गया, 4th बटालियन राजपूताना राइफल्स और 4 आर्चरी एज वी कॉल इट, उस यूनिट में एक छोटी सी ट्रेडिशन है कि जो आपकी लुक है, कि जैसे आप देखते हो, कि जैसा आपका एटीट्यूड है, उसके बरखिलाफ आपका नाम रखा जाता है. That is opposite to what you look like. So since I am 6 feet 3 inches, so I was named Tiger. So similarly, every other officer in the unit is given a name. So interesting, sir. Sir, academy की कुछ चीज आप प्लीज शेयर करिए. Any incident which brings a smile on your face now? Academy का it's difficult to choose incidents हैं, like you also trained through it. And अभी आपने इंस्टेंटली सवाल पूछा तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि 4th January 1980, I still remember the day. Almost 43 years ago, that is the day I joined National Defense Academy at Ghorpudi in Pune. And जो आपने बॉन्डिंग की बात की, अभी थोड़े दिन पहले my wife, along with 22 of our course-mates, had gone on a foreign tour for about 10 days. So 44 officers and wives from my course, we were together in a foreign country for 10 days, and that's a bonding. Yesterday, 4 of us course-mates, along with the lady wives, had gone to attend a function of another course-mate's granddaughter's wedding. So, sorry, daughter's wedding. So this is how the bonding remains. And it's a wonderful experience. और academy में बहुत कुछ होता है. Academy में, like, I'll give you a small thing which you said. I had broken my finger. That famous crooked finger, I can't straighten it even today. This finger had broken into 2. So I written about it in the book. So once this finger had broken, so I had a plaster on my finger, and like you know, जब आपको चोट लगी होती है तो आपको physical activities excused होती है. तो excuse PPG. या excuse PT. So PT का परेड चल रहा था, तो मैं बाहर अपना प्लास्टर लगा के बाहर बैठा हुआ था. So suddenly that famous Ustad which you refer to, PT Ustad, he came and he asked me, "Cadet, क्या हुआ है?" So I said, "Ustad, उंगली में चोट लगी है." तो कहता, उंगली में चोट लगी है, टांगे तो ठीक है, चलो उठो बैठे करो. So there is no escaping physical activity in the academy, come what may. Come what may. Sir, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. In my on my Instagram, I generally post short videos, 2 minutes, 1 minute, about dining etiquettes. और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई बच्चा देखे इनको तो कुछ सीखे और कभी जिंदगी में काम आए. They should not face any embarrassing situation sometime. किस हाथ में छुरी और किस हाथ में कांटा और किस हाथ में चम्मच, इतना तो आना चाहिए. I saw your small video yesterday of how to tie a tie. कि ऊपर का बटन बंद होना चाहिए. And the last line was, बच्चे जिन्होंने नहीं देखा, ये टाई है, नाड़ा नहीं है. सब फौजी तो फौजी की तरह ही बात करते हैं सर. तो I'm absolutely no filter. तो सर जब मैं ये डाइनिंग एटिकेट के वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे हमेशा my husband sir was posted at NDA. I got to see NDA at very close quarters. कैसे वो 2000 कैडेट्स एक साथ 15 मिनट में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. Everyone is served hot toast and hot porridge with full dining etiquettes. They eat and 15 मिनट में ही बाहर क्लासेस के लिए निकल जाते हैं. पर सर डाइनिंग हॉल की जो पनिशमेंट्स होती हैं वो लेजेंडरी होती है. सर ये बताइए
जानेंगे कि how did you learn your dining etiquettes in academy? Through punishments? And if there were any, we would like to listen to a kissa, sir. Yeah, in fact, in my book, I have devoted about 1.5 chapter to NDA training. And this punishment thing, I must tell you something very interesting, which is also in the book. You know, there's something called dinner nights. And dinner night is where you eat with all the etiquettes as you refer to. And everyone is dressed in the mess dress or the white petrol or blue petrol, depending on the season, weather. So there was a dinner night going on. And I was in my second term. I was the junior most term, and there's a third termer who was sitting next to the instructor. Like you said, your husband is an instructor in NDA. So that third termer was sitting next to the instructor, trying to impress him. Now, when he is eating his chicken with the fork and knife, that chicken flew off from his. Sir, it happened with me also. It flew off, after having been cooked. So the chicken piece flew off, and we had a small laugh on our face, a small smile. Now, this senior didn't like that smile on her face. So after the dinner night was over, he made us roll under those dining tables on which we are sitting and having a dinner. So this is how the punishment is instant. Actually, it's not punishment. It's a corrective action which is done. And talking about breakfast, the young children must know, you know, NDA candidate can have 25 toasts in those given 15 minutes. So that is the type of breakfast. I'm sure you must be surprised कि कैसे खाते होंगे, लेकिन बिल्कुल सही है sir. We have few with the butter, we have few with the jam, we have few with the coffee, and उसके लास्ट में 3-4 तो पानी में डुबो के खा जाते हैं. बस अंदर जाना चाहिए. अंदर जाना चाहिए. You are doing such a physical activity, you need that energy, and you need instant energy. Yes, sir. Yes. Sir, I am so surprised कि उस टाइम पर 8-8, 10-10 अंडे मैं खा जाती थी सर. Yes. वो नहीं खा सके तो पाउचेस के अंदर रख के और फिर भाग रहे हैं, बट कैरिंग द फूड इवन इफ यू कैन नॉट ईट इट. बहुत बहुत यादगार दिन है सर. सर एक चीज I always tell whenever I'm speaking to either defense aspirants or otherwise, that in army you are never an intern. Yeah. From day one, from second up to second lieutenant होता नहीं सर, अब तो lieutenant ही होते हैं. From day one you are a leader, and this question is asked also many times: are leaders born or are leaders made? क्योंकि NDA में बड़ी आइकॉनिक लाइन लिखी है, क्रेडल ऑफ लीडरशिप. 17-18 साल के बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो फ्यूचर लीडर्स बनके निकलते हैं. एंड सर टुडे आल्सो जितने बच्चे सुन रहे हैं, दे आर जनरली बिटवीन द एज 18 to 24. ऑन अ सीरियस नोट, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू सर दैट कैसे अपने अंदर वो लीडरशिप, टीम स्पिरिट और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, एक पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें. Okay, take the second part of the question first, the communication skills or the personality. It is generally confused with कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है. So बहुत से बच्चे इस बात को कि मैं अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाता हूँ या मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है या नहीं है, इस चीज से उसको लिंक करते हैं कि मेरे को इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है. मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इंग्लिश बोलना इज जस्ट नॉट द एस्पेक्ट विच वी लुक एट when people are selected for NDA, IMA, OTA and any other recruitment. जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है कि as a raw person of 17 years of age or 16 or 18 years of age, how authentic this girl or boy is, how genuine this boy or girl is. उसको फिर ट्रेन करना, मोल्ड करना, उसको इंग्लिश सिखाना, उसको ग्रेजुएशन करवाना, उसको wherever, उसको आगे चिजलिंग, मेंटरिंग, वो ट्रेनिंग में होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में होती है, ड्यूरिंग द सर्विस होती है. तो प्लीज डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती या मैं किसी लोकल स्कूल में विद्यार्थी हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं आर्मी या नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता. नो, अगर आप में वो है बात, इफ यू हैव इट इन यू, यू आर देयर. नाउ कमिंग टू क्रेडल फॉर लीडरशिप, क्रेडल ऑफ लीडरशिप और लीडरशिप पद से, अभी आप जब एसएसबी के लिए जाते हैं, यशिका मैम आपको काफी उसके ऊपर गाइड करती है. देखिए, लीडर्स इन माय ओपिनियन लीडर्स आर नीदर बॉर्न, लीडर्स आर नॉट क्रिएटेड. आई विल गिव यू एन एग्जांपल.
रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, 50 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, वो एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे की काबिलियत नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता, एजुकेशन नहीं पता, कुछ नहीं पता। उनमें से एक आदमी या औरत सामने आती है, जो चोट लगी उसको उठाती है, अपने गाड़ी में डालती है और हॉस्पिटल लेके जाती है। दैट मीन्स लीडर्स इमर्ज फ्रॉम द सिचुएशंस। जो कॉम्बैट सिचुएशन में खास करके जहां पे आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, वहां पे लीडर्स इमर्ज होते हैं, लीडर्स इवॉल्व होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो एकेडमी की ट्रेनिंग है, जो फिजिकल टफनेस है, जो मेंटल टफनेस है, वो आपको अपने आप में आत्मविश्वास दिलाती है कि यस आई कैन लीड दिस टीम। मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ, अगेन पर्सनल एग्जांपल। एक कमांडो कोर्स है जो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स डू इट, एंड ऑल द इन्फेंट्री ऑफिसर्स कंपल्सरीली डू इट। कमांडो कोर्स में देयर इज एन एक्टिविटी 40 किलोमीटर्स रूट मार्च और रन। जब तक मैंने वो किया नहीं था, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था कि मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने वो 40 किलोमीटर का रन अपने ऊपर पूरा पिट्ठू लेकर के, राइफल, बड़े बूट, 30-35 kg का वेट, जब मैंने उसको कंप्लीट किया, तो मेरे अंदर फिजिकल फिटनेस की फीलिंग नहीं आई। मुझे जो फीलिंग आई कि मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ कि आई कैन डू इट। सो जब सिचुएशन आएगी फील्ड में या हाई एल्टीट्यूड एरिया में या पहाड़ों में या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में, और मेरी टीम को 40 किलोमीटर चलना है, दुश्मन के इलाके में जाना है, कोई रेड करके वापस आना है, तो मेरी को जो मेंटल फिटनेस मेरे को वहां पे हुई थी, मिली थी, दैट विल मेक मी अ लीडर कि आई कैन डू इट, आई कैन लीड। तो जो आपका सवाल था कि क्रेडल फॉर लीडरशिप, वो हमारे को प्रिपेयर करती है, ट्रेनिंग हमको प्रिपेयर करती है टू लीड अंडर डिफिकल्ट सिचुएशन। बट इन माय ओपिनियन, लीडर्स इमर्ज। लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच सिचुएशन के अंदर, आपने कई हिंदू इंग्लिश मूवीज देखे हैं, वन ऑफ द वीकेस्ट पर्सन, जो सबसे, जिसको कहते हैं कमजोर बंदा या लड़का या लड़की, एक गिवन सिचुएशन में इतनी जोश के साथ में एक्शन करता है, ही इज अ लीडर हु इमर्जेस फ्रॉम दैट कॉम्बैट सिचुएशन और अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास रखो, अपनी बैकग्राउंड पे विश्वास रखो, अपनी फैमिली वैल्यूज पे विश्वास रखो, अपनी भारतीयता पे विश्वास रखो। वेरी राइट। लाइक आई ऑलवेज से, 5000 साल पुरानी सभ्यता के वंशज हैं हम, हमें अपने इतिहास पे गर्व होना चाहिए। These are the things which give us strength to lead in combat, lead in crisis situation. Very right, sir. I mean, we all have seen in academy, cross country दौड़ रहे हैं, शुरुआती दिनों में गिर रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे, बट कोर्समेट्स आपको उठा के खड़ा करते हैं, दे एग यू ऑन, और धीरे धीरे करके यही चीज स्विमिंग के साथ है सर। 7 मीटर से जंप करना होता है तो देन एवरीवन स्टार्ट्स, द स्टमक स्टार्ट्स ड्रॉपिंग टू द पिट्स, कि कैसे वो इतना छोटा सा पूल नजर आता है जब आप ऊपर खड़े होते हो। लेकिन आपको पता है कि हम करेंगे नहीं तो पास आउट तो होंगे नहीं, रेलिगेट हो जाएंगे। एंड फ्रॉम इनर रिजर्वॉयर्स वो एक टफनेस आती है सर। Absolutely, absolutely. एक टाइम आता है जब हम उसको कर लेते हैं। So I'll give you a personal example again. Sir. Second term in the NDA, because first term was in, during our time, first term was in Ghorpudi. So main swimming pool, which is Olympic size swimming pool, is in main NDA Khadagwasla. So second term में जब आए तो I was a non-swimmer to start with. I didn't know swimming. So first day in the swimming period, the instructor came there. He said, "Okay, everyone on the 7-meter board." Since I was the senior most in the number, so I was the first one to stand on the board. And he said, "Okay, jump." So I jumped. And once I inside the water, I started drowning. So suddenly the instructor jumped in, they pulled me out, and then this captain Saab, he asked me, "You don't know swimming?" I said, "No, sir." He said, "Then why did you jump?" I said, "So you told me to jump, I jumped." So he said, "You should have told me that." I said, "NDA में और academy में इतने सवाल जवाब कैडेट्स के साथ नहीं कर सकते हो। हुक्म मिला jump, so you jump." And this particular incident takes you to the battlefield, takes you in a counter-terrorist operation. When you're given an order to do a thing, you are never bothered about your own personal safety. As a leader or as a commander, maybe a lieutenant or a lieutenant general, you're more concerned about the safety of your troops, the collateral damage which can be caused to the public or any government property or private property. So your personal safety comes last always and every time. This lesson I learned in the swimming period. That is so correct. सर जब मैं अकेडमी में थी तो आई वाज अ स्टोन स्विमर व्हेन आई रीच्ड अकेडमी। बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती थी सर। Yes. और जब
जंप करने के लिए ऊपर बोला तो आई गॉट वेरी चिटरी. दैट फर्स्ट रिफ्लेक्स वाज आपने तो जंप मार दी सर, मैं डर गई. और आई केम बैक. देन अगेन उस्ताद सेट मी. Again, I came back. Third time, Ustad sent me and said that now I'm going to put you up to adjutant if you do not do this. Okay. And I was getting actually very scared, sir. स्विमिंग नहीं आती थी, जंप मार दिया. बोला भी नहीं उस्ताद को कि स्विमिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता. और when I jumped, I fell on the wrong side. और बिल्कुल ऐसा लगा कि my skin has torn. I sunk inside. बचा के बाहर निकाला. And then Ustad asked me, he said, you don't know swimming? I said, नहीं उस्ताद, स्विमिंग नहीं आती. And I was crying. He said, तुम दुनिया से लड़के फौज में आई हो, Yes. तो पानी से डर के फौज के बाहर चली जाओगी क्या? And that somehow struck me very deep. I said, I am among the initial batches. ये अपने में एक बड़ा बहुत बड़ी चीज है, तो मैं पानी से क्यों डरूं? सिर्फ उसके बाद सीखी स्विमिंग, उसके बाद तो खूब जॉब किया. लेकिन ये किससे टफनेस और मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट उसके बाद हुआ सर. सर बहुत बार हम बच्चों को बोलते हैं डिसिप्लिन से जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लीड अ डिसिप्लिन लाइफ. लेकिन बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कई बार कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है. वी आर नॉट फौजीज एज येट, व्हाई डू यू वांट टू पुट अस इन अ मोल्ड ऑफ फौज? बट डिसिप्लिन सिर्फ फौज के लिए नहीं है सर, हर जगह. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट. सर ये डिसिप्लिन का सही मायने आपसे सुनना चाहेंगे. ओके, देखिए मैं बुक की डेफिनेशन से कभी भी सहमत नहीं होता, बिकॉज आई पर्सनली फील जो लाइफ सिखाती है ना वो सबसे अच्छी सिखलाई है मेरे हिसाब से. सिंस यू जस्ट आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मेरे हिसाब से डिसिप्लिन इज डूइंग द करेक्ट थिंग इन द करेक्ट क्वांटिटी एट द करेक्ट टाइम एंड विद द करेक्ट पर्सपेक्टिव. अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. बच्चे सुनते हैं, बच्चों को आप रात के 4 बजे तक 3 बजे तक इंस्टाग्राम पे होते हो, यूट्यूब पे होते हो, या गूगल पे सर्च कर रहे हो, पर आपने 4 घंटे पढ़ना भी है. फिर आप सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मुझे सुबह 8 बजे उठा देना, मेरे को पढ़ाई करनी है. फिर आपको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी की भी जरूरत है, वो भी आप करते हो. फिर थोड़ी आपको पर्सनल कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दिस दैट, वो सब भी जरूरी है. तो ये सारी चीजें आपने करनी है और आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं. अगर आप इसको सही तरतीब में नहीं करोगे तो योर हेल्थ विल सफर, योर मेंटल फैकल्टीज विल सफर, योर ग्रेड्स विल सफर एंड योर लाइफ इन अ सोशल सर्कल विल सफर. लेकिन इसी 5-6 चीज को उसी 24 घंटे के अंदर आप सही टाइम पे, सही मात्रा में और सही फोकस से करोगे, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन लाइफ. मैं ये नहीं कहता कि ये मत करो और वो करो, मैं यही कहता हूँ कि जो भी आपको करना है वो करो सही मात्रा में, सही टाइम पे, सही सीक्वेंसिंग में, ताकि यू गेट proper 8 to 10 hours of rest, you have 4 hours of studying, you do your 1 hour 40 minutes, 1.5 hours of exercise, you socialize, go around, meet friends, enjoy yourself, go out, play games, and also do the internet work or Google search or chat with friends, whatever. लेकिन उसका जो है ना सीक्वेंसिंग थोड़ा ठीक कर लो बच्चे. वो चीज जो है, that is where I see in today's generation they go wrong in that, and then they blame things on the other things. So my request is, discipline is nothing but doing the right thing in the right manner, in the right quantity, in the right sequencing, right perspective, with a complete focus what you want to achieve. Even eating is a discipline. If you have a hunger for only 2 chapatis, please try and eat only 1.5, and don't say कि आज तो भटूरे बड़े टेस्टी बने हैं तो 4 खा लेते हैं. So that is again होता है ना सर. सर ये तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बच्चों को इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि उसके बीच में सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही बहुत मुश्किल भी है. बट सर बहुत सीरियस चीज मैंने आपसे पूछ ली. नाउ लेट मी आस्क यू सर, वर यू एवर कॉट
ब्रेकिंग एनी रूल्स? मैंने आपने जो कभी कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था और आप बच गए? So many times, you know, and if you read the book, and I have narrated incidents, and I really want to read the book, sir. I'm waiting for it to come to stands. Yeah. So I want to tell the youngsters, देखिए, कोई भी आदमी, you know, you can say he does not become a lieutenant general or he does not become a particular appointment or a rank or age without having to go through the rigmarole or the sequencing. अगर मैं लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचा तो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था एक दिन, मैं कैडेट था एक दिन, मैं जेंटलमैन कैडेट था एक दिन। और जैसे मैंने बोला, मैंने स्कूल में फेल हुआ हूँ, फिर दोबारा पास हुआ हूँ। मैं स्कूल में अपने गार्डियन के तौर पे किसी को, दूसरे को रिक्वेस्ट किया कि सर आइए प्लीज मेरे गार्डियन बन के मेरे स्कूल चलिए। मैं प्रिंसिपल के सामने एक आदमी को खड़ा किया है अपना गार्डियन बना के। तो देखिए, ये छोटी छोटी शरारतें जो हैं हर कोई करता है। मैंने एनडीए फर्स्ट टर्म में, वी वर कॉट ड्रिंकिंग ऑन द डे ऑफ होली, वी वर मार्च्ड अप, वी वर अबाउट टू बी रेलीगेटेड, आई रिटन इन ग्रेट डिटेल, बट वी लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। सो क्योंकि मेरे घर में होली के दिन शराब पीना कोई बुरी बात नहीं थी, सारे परिवार वाले इकट्ठे बैठ के पीते थे, तो मुझे नहीं मालूम था कि ये कोई इतना बड़ा इनडिसिप्लिन का काम कर रहा हूँ। आई थॉट इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, एंड फ्यू ऑफ अस गॉट टुगेदर, वी हैड अ ड्रिंक। इमेजिन, एक बोतल लेके 12 लोग पी रहे हैं। I don't know how much we would have consumed, but fact is we broke a particular rule. Yes, we got punished for it, but there afterwards we learnt our lessons. So देखिए, प्लीज इस भ्रम में मत रहिए कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं या लाइफ में कुछ अचीव करते हैं वो गलती नहीं करते। वो गलती करते हैं लेकिन गलती से सीखते हैं, वो गलती को दोहराते नहीं। कि एक मैं, if you don't mind, Captain Yashika, just take 30 seconds. There's something called गलती, गुनाह, पाप। आप बाइक चला रहे हो, आपके हेलमेट पहना हुआ है, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, आप 30-40 की स्पीड पे चल रहे हो, आप रोड के लेफ्ट साइड में चल रहे हो, किसी पेडेस्ट्रियन से टक्कर होती है, उस आदमी की डेथ हो जाती है। इमेजिन, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट द मैन हैज डाइड। लेकिन ये गलती है क्योंकि आपका बाकी सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और बिना हेलमेट के राइट साइड में गाड़ी चला रहे हो, किसी से टक्कर होती है, उसको बाजू में फ्रैक्चर हो जाता है, वो गुनाह है। क्योंकि यू आर नॉट सपोज्ड टू बी ड्राइविंग, ऑल्दो मैन हैज नॉट डाइड, एंड रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप बिना हेलमेट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गलत साइड में गाड़ी चला रहे हो, उसकी बाजू को फ्रैक्चर हो गया, वो गुनाह है। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि आप पिछली बार आपने ये गलती की थी, आगे से नहीं दोहरानी है, बिना हेलमेट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चलानी है गाड़ी, आप फिर भी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो, किसी की उंगली में खरोंच आती है, वो पाप है, क्योंकि आपको बताया गया था कि ये गलती दोहरानी नहीं है। सो रिमेंबर दिस, गलती, गुनाह, पाप। जो चीज अनजाने में होती है, जब आप सब कुछ ठीक करते हो, उसका एंड रिजल्ट कुछ भी हो, वो गलती है, उसमें माफी का स्कोप है। लेकिन अगर जानबूझ के आप करते हो वो गुनाह है, और अगर आपको बताने के बावजूद भी आप उसको रिपीट करते हो वो पाप है। So I just thought I'll explain this, and this has been the principle in my life also. This is very right, sir. माने एकेडमी में स्टमक एक का बहाना आपने भी किया होगा। आंखों में टूथपेस्ट लगा के कंजक्टिवाइटिस हो गया, और रेस्ट ले लिया। सर ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जिंदगी सबसे बहुत बड़ी है। Now, let me tell you now, we are parents today, we are seniors in the army, we have been instructors in various places. तो ये सब इंस्ट्रक्टर को भी पता होता है कि ये इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कि ये गलत कार्रवाई कर रहा है, इसने टूथपेस्ट लगा के आंखों में कंजक्टिवाइटिस के कारण। लेकिन they overlook it because this is also part of the training. How to deceive the enemy in a given situation. How to come out of a difficult situation by faking it. So this is how, बिना आपको पता लगे, आपकी ट्रेनिंग जारी रहती है एकेडमी में, एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, व्हिच आई कॉल इट सर्वाइवल भी है सर। ये इट इज टेकिंग अस टू द नेक्स्ट डे अलाइव। सर आजकल एसएसबी कोचिंग, सर, इट इज मशरूमिंग एवरीवेयर। द सिटी नेम हु इज आस्किंग द क्वेश्चंस? सर नाम बहुत सारे हैं सर, तो मेरे आधा टाइम सवालों नाम लेने में। सर ये फोर्सेस रिक्वेस्ट हो जाएगा फिर। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग फोर्सेस रिक्वेस्ट ऑफ योर टाइम, सर। No, बहुत
as long as the young boys and girls are asking me questions and they are picking up even 1% of what I'm saying, Yes, sir. I'm big yes for it. Sir, I got this question from many boys and girls, especially from those who are living in tier 3 cities and small towns. और उनका ये सवाल है सर कि एसएसबी कोचिंग हमारे शहरों में नहीं है, और है भी तो पास नहीं है, हमें दूर जाना पड़ेगा. देयर आर मेनी बॉयज हु आर टेकिंग रूम्स ऑन रेंट और सिर्फ एसएसबी कोचिंग के लिए या इंग्लिश बोलना सीखने के लिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं. सर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीपल हु आर एक्चुअली वेरी डिजर्विंग और हु कैन डू समथिंग, उनका मोरल डाउन हो जाता है कि हम ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे, या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, या हम ज्योग्राफिकली ऐसे प्लेस्ड नहीं है. लड़के तो चले जाएंगे, लड़कियों को तो पेरेंट्स सिर्फ एसएसबी कोचिंग के लिए दूसरे शहरों में नहीं भेजेंगे अकेले रहने के लिए. तो ये सवाल बहुत जगह से आया सर. तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हाउ डज एसएसबी सेलेक्ट पीपल सर. क्या एसएसबी हम ट्रेनिंग करके क्लियर कर सकते हैं? बिकॉज एसएसबी इज टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी सर. क्या कोचिंग जरूरी है? और नहीं तो ये बच्चे खुद अपनी पर्सनालिटी में इतना दम कैसे ला सकते हैं सर कि एसएसबी जाएं और अपना सबसे बेस्ट करें? एंड आई विल रिक्वेस्ट यू सर, इस सवाल का जवाब हिंदी में दीजिएगा सर, क्योंकि बच्चे सुनना चाहेंगे, इसको समझना चाहेंगे सर. ओके, देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जो एसएसबी की सिलेक्शन है, हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा या बॉय और अ गर्ल वो अपने आप को संवार के, और लेट्स कॉल इट फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, कि मेकअप करके आके हमारे सामने खड़ा हो जाए और हम उससे इंप्रेस हो जाए. नहीं, हमको नहीं चाहिए जो ऊपर से अपने आप को शिगार संवार करके आके हमारे सामने खड़ा होता है. और लेट मी टेल यू, पीपल जो एसएसबी में पोस्टेड हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो सिलेक्शन बोर्ड में हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर क्वालिफाइड. उनकी पहले ट्रेनिंग होती है एसएसबी की सिलेक्शन के लिए, फिर उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है. वो आपको 1 मिनट में भांप लेते हैं कि आप क्या हो एक्चुअली. और जैसे यशिका मैम ने बोला कि हमें मेन मटेरियल चाहिए, हमें बना संवरा हुआ नहीं चाहिए. और इसमें 2 लफ्ज हैं, एसएसबी कोचिंग एंड एसएसबी गाइडेंस. तो इसमें थोड़ा सा ना अंतर समझना. एसएसबी कोचिंग वो है जहां पे आप जाके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पैसे दे करके सुबह से लेकर शाम तक के आपको वो पुराने जो भी पुराने टेस्ट होते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, रिहर्सल करवाते हैं, आपको तैयार करवाते हैं, आपको बोलने हैं, बताते हैं कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है. सो वो आपको एक टेम्परेरी तौर के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करते हैं या चेंज कर देते हैं. लेकिन वहां पे जब आप एसएसबी में जाते हो, सबसे पहले पता लगता है जो अच्छा वहाँ पे इंस्ट्रक्टर पोस्टेड है, वो आपको सीधा बोलेगा फलां एकेडमी से कोचिंग लेकर आए, क्योंकि उनको मालूम है कौन सी एकेडमी कैसी कोचिंग देती है. तो इसलिए प्लीज इस भ्रम में मत रहिए कि कोचिंग जरूरी है. यस, गाइडेंस जरूरी है, प्रिपरेशन जरूरी है. और उसके लिए जैसे आज का ये सेशन है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उस गाइडेंस के तौर पे. यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत से वीडियोस हैं, बहुत से लेक्चर्स हैं या टॉक्स हैं जो अच्छे अच्छे लोगों ने बताए, उसके टिप्स दिए हैं आपको कि एसएसबी को कैसे फेस करना है. तो वो जो गाइडेंस है, जो प्रिपरेशन है, वो बहुत जरूरी है. एंड अगर जैसे मैम ने बोला कि अगर आप टियर 3 सिटी से आते हो या छोटे शहर से आते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, द बेस्ट सोल्जर्स आर द वंस हु कम फ्रॉम लिटिल स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस. क्योंकि उनमें जो हार्डीनेस है, फिजिकल हार्डीनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हार्डीनेस है टू विथस्टैंड मेंटल स्ट्रेस, वो बहुत ज्यादा है. शहर का बच्चा 2 मिनट ऐसे नहीं ऑन होता, उसको पसीना आने लगता है. गांव वाला धीरे से जाके पानी पीता है, ट्यूबवेल से, पेड़ के नीचे बैठ जाता है, मस्त है. सो नथिंग अगेंस्ट बिग सिटीज. जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एसएसबी की कोचिंग जरूरी नहीं है, एसएसबी की गाइडेंस एंड उसके लिए तैयारी जरूरी है. अगर आप सोचो कि ठीक है, ना तो मैं कोचिंग की है, ना मेरे को किसी गाइडेंस की जरूरत है, और जल साहब ने बोला था हमको रॉ मटेरियल चाहिए, हम सीधे वहां पहुंच जाएंगे, और वहां पे जाके आपको मालूम ही नहीं है कि आपके सामने टेस्ट किस तरह का आने वाला है, फिर वो बात शायद आपके हक में नहीं जाएगी.
तो थोड़ी तैयारी जरूर कीजिए। आप एक टेस्ट के लिए जा रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट है जिसमें जो बेस्ट है उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो अपने आप को चांस दीजिए कि आप सिलेक्शन के ऊपर खरे उतरें। अगर आप पैसे से नहीं अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप बड़े शहर में जाके कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अपने आसपास, अपने माहौल में, अपने मोबाइल के ऊपर आप बहुत सी चीजें सीख सकते हो जो आपको एसएसबी के लिए तैयार करेगी। तो एंड दूसरी बात है कि जब एक बार सिलेक्ट हो जाते हो फिर उसमें आपको सब किस्म से आपको एक अच्छा ऑफिसर बनाने के लिए वो ट्रेनिंग की जो मेथोडोलॉजी है बहुत अच्छी है। एंड वंस यू पास आउट फ्रॉम एकेडमी यू आर अ डिफरेंट पर्सन। वो एकेडमी का काम है, वो एकेडमी का काम है आपको ठोक बजा के एकदम एक रेडी प्रोडक्ट बाहर निकालना। एक पुराना एक हिंदी का गाना है, जितना तपता है सोना उतना आता है निखार। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एकेडमी डज टू यू। बिल्कुल सही सर। और अब तो सर्दियों के दिन है तो वही बात है कि जितनी अदरक कूटी जाएगी उतनी चाय कड़क बनेगी। तो जरूरी है कि थोड़ा हमको प्रेशर मिले और बस करने की मन में एक तड़प होनी चाहिए कि वी हैव टू रीच आवर गोल, वी हैव टू अटेन आवर ड्रीम। वो वर्दी है चाहे कुछ भी है, जिंदगी में एक मकाम हासिल करना है और बस उसके लिए अपना सब कुछ लगाना है। Absolutely. Sir, I would like to really understand from you. जब मैंने फौज ज्वाइन की सर 1993, 1994 I passed out from academy और वो इतना इनिशियल टाइम था, हर चीज फॉर्मुलेट हो रही थी। 25 लड़कियां एकदम पहला बैच और इन मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी, वो तो एक बूंद भी नहीं था सर। 25 लड़कियां, धीरे धीरे करके समय बदलता गया सर। नाउ 30 years down the line, so much has changed. Now girls are in formidable numbers, not formidable but good number. परमानेंट कमीशन आ गया, कमांडिंग ऑफिसर के लिए आप उस एलिजिबिलिटी के दायरे में आ गए। विमेन सोल्जर जीडीज आर कमिंग इन एंड सर नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे खुल गए। सर आगे क्या है मेरी ट्राइब के लिए, दैट आई वांट टू नो। What are the future plans for girls? What are the opportunities that are looking their way? और इसके लिए लड़कियों को कैसे तैयार होना पड़ेगा सर? ओके, अगेन इसका जवाब मैं हिंदी में दूंगा। सबसे पहले तो यशिका मैम, मैं आपका बैच जो था, सबसे पहले विमेन ऑफिसर्स बैच जो था, वो आइस ब्रेकर बोल दो, पाथ ब्रेकर बोल लो, पाथ बीटर्स बोल लो, द लीडर्स बोल लो, पायनियर्स बोल लो, आप लोगों ने जो फौज में ऑफिसर बनने के बाद में जैसी कार्रवाई की, जैसे अपने आप को मोटिवेशन दी, जैसे जो कहते हैं ना स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया। जब आप लोग ऑफिसर बन के आए थे, जवान को मालूम नहीं था कि आपको एड्रेस कैसे करना है। आपको सर बोलना, सर आई विल टेल यू, आई वुड वेयर यूनिफॉर्म, आपको मैडम सर बोलना है। सर आई वुड वेयर यूनिफॉर्म। और मुझे याद है आई वाज पोस्टेड, माय फर्स्ट यूनिट वाज इन बठिंडा और दोस टॉल आपके जैसे एकदम लंबे लंबे पंजाब रेजिमेंट के जवान थे, पगड़ी चगड़ी, और वो इफ आई एम वॉकिंग तो ऐसे देखते थे पहले कि ये छोटा सा बच्चा आ रहा है वर्दी पहन के, ये फैंसी ड्रेस है कि ये क्या है। एंड देन वेरी प्राउडली आई वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, शो देम माय स्टार्स एंड मैं ऐसा सिखा मैडम, ऐसा सिखा मैडम। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो जो आपके बैच ने किया वो बहुत जरूरी था और एक बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने आप को कंडक्ट किया, एक मिसाल कायम की, जिसको कहते हैं यू सेट एन एग्जांपल फॉर the women in the army, and that's the reason today we have women in the NDA. If your batch had not done what you have done, the things may have been different. Now having said this, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं जब क्योंकि इन्फेंट्री में हूँ तो कर्नल रैंक तक मेरा इंटरेक्शन विद वुमेन ऑफिसर्स बहुत कम था। सिर्फ स्टाफ में, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में अगर कोई वुमेन ऑफिसर है, एजुकेशन ऑफिसर और समथिंग, तो उनके साथ था, बाकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन जब मैं ब्रिगेड कमांडर बना, फिर मेरी ज्यादातर पोस्टिंग्स आरआर में है, कश्मीर में है, तो कम था। लेकिन जब मैं जीओसी बन के सागर में मध्य प्रदेश में गया, इस एरिया में, वहां पे बहुत इंटरेक्शन हुआ। और फिर जब मैं कोर कमांडर था 15 कोर में, श्रीनगर में, कोर हेडक्वार्टर में बहुत से वुमेन ऑफिसर्स थे। एंड मैं बताना चाहता हूँ, विद प्राउड बताना चाहता हूँ कि मेरे को लगता है कि वुमेन ऑफिसर्स आर मच बेटर देन मेल ऑफिसर्स इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। एंड
एक एग्जांपल थी, मैं कश्मीर में सीओ था एंड उस टाइम पे पराक्रम चल रहा था, तो हम लोग कश्मीर के किसी जंगली इलाके में अपना कैंप लगाकर बैठे हुए थे। रात के 2 बजे के करीब, हर रोज रात को ड्यूटी चेक करने के लिए आते हैं हवलदार साहब, जेसीओ साहब, तो मुझे टेंट के अंदर से बार आवाज सुन जाती थी, हाँ भी सब ठीक है, डायरी में नोट करना, वट एक रात को करीब 2 बजे मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी अपने टेंट के बाद। तो मेरे को थोड़ा सा अचंभा हुआ कि ये, क्योंकि मैं राजरीफ का हूँ, राजपुताना राइफल्स, हमारे ट्रुप्स हैं जाट्स एंड राजपूत, तो उनके किसी भी तरीके से उसकी बोली जो है इतनी नरम नहीं हो सकती जाट की और राजपूत लड़के की, कि उसका मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि शायद वो लड़की की भाषा, लड़की की बोली है। तो एनीवे मैंने आवाज दी, जो सेंट्री था बाहर, राम सिंह वट एवर द नेम, मैं राम सिंह बेटा कौन है, कह रहे साहब एक मैडम आई है। तो इमेजिन करो कश्मीर के जंगलों में रात के 2 बजे टेंट के बाहर कोई, तो मैं बाहर आया तो एक यंग लेफ्टिनेंट इंजीनियर रेजिमेंट की वुमेन ऑफिसर, तो वो वहां पे खड़ी हुई थी, तो मैंने, उसने मेरे को सल्यूट वगैरह किया, तो मैंने बोला हाँ जी हाउ कैन वी हेल्प। तो उसने मेरे को बताया कि सर मैं अपनी 1 टन में ड्राइवर के साथ में यहाँ से ड्राइव करके अपनी, आगे उनकी को फॉरवर्ड लोकेशन थी एलसी के ऊपर, वहां जा रही हूँ, लेकिन यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाके हमारी 1 टन खराब हो गई। नाउ ये चीज ध्यान से सुनना, उस वुमेन ऑफिसर के पास में, उस लेफ्टिनेंट साहब के पास में ये ऑप्शन थी कि वो खुद को 1 टन के अंदर लॉक करके बैठ जाए और ड्राइवर को बोले भैया जाइए आप जाके हेल्प लेके आइए पीछे यूनिट के हम जिसको हम क्रॉस करके आए हैं। बट उसको मालूम था रात के 2 बजे का ड्राइवर जाएगा तो शायद हेल्प लेने में टाइम लग जाएगा। तो एज एन ऑफिसर शी टुक इट ऑन हरसेल्फ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। सर आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा सर। नाउ इज इट ओके? हाँ, नाउ इट्स ओके, परफेक्ट। सो उसने ड्राइवर को ना भेज के खुद आई, हमने उसको साथ में मैकेनिक वगैरह भेजे और उन्होंने जाके उनकी गाड़ी ठीक की और आगे चले गए। पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज जो आपने बोला कि जब आप अकेडमी से निकलते हो तो लीडर कैसे बन जाते हो, उस वुमेन ऑफिसर ने, उस लेफ्टिनेंट ने रात के 2 बजे लीडरशिप क्वालिटी का मुजाहरा किया, लीडरशिप दिखाई, लीडरशिप इमर्ज हुई। नहीं तो उसने ड्राइवर को बोला सब जाइए। दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ, जब मैं कोर हेडक्वार्टर में कोर कमांडर था कश्मीर में 2019 में 20 में, तो जैसे आपको मालूम है एक डीवी ब्रांच होती है, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस, जिसमें जितने भी किसी के खिलाफ इल्जाम है, उसके करेक्टर पे इल्जाम है, कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में इल्जाम है, तो वो सारे केसेस डीवी ब्रांच हैंडल करती है, जिसमें इंसान की करेक्टर इन्वॉल्व होता है, जब उसके मिलिट्री रेपुटेशन के खिलाफ कुछ इल्जाम होते हैं। तो मैं बाकी सारी डिस्कशन ओपन हाउस में बैठ के करता था, चाहे वो ऑपरेशंस की है, लॉजिस्टिक्स की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, लेकिन ये जो मैटर्स थे जहाँ पे मिलिट्री रेपुटेशन इन्वॉल्व थी, वो मैं ऑफिस में विद द डीलिंग ऑफिसर 1-to-1 बात करता था, ताकि सबको नहीं मालूम पड़े किसके बारे में बात हो रही है। तो अगेन एक यंग लेफ्टिनेंट, वो जैक ब्रांच की ऑफिसर थी, वो इन सब केसेस को हैंडल करती, तो मेरे सामने टेबल के ऊपर आके बैठती थी। इमेजिन एक 22 साल की लड़की और इधर मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल बैठा हूँ, और इतने सेंसिटिव इश्यूज, सम इवन इन्वॉल्विंग मिलिट्री कैरेक्टर्स, सम पर्सनल कैरेक्टर्स, एंड वो इतना प्रिपेयर करके आती थी और मेरे से बेझिझक बात करती थी। उसमें कभी भी ऐसा नहीं था कि ये मेल है मैं फीमेल हूँ और मेरे को ये बात ऐसे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। वो अपनी ड्यूटी के तौर के ऊपर एकदम परफेक्ट, द वे एन ऑफिसर इज सपोज्ड टू ब्रीफ द सीनियर ऑफिसर। तो मैं उसको हर रोज बोलता था, बेटा आपका जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने बिल्कुल झिझक नहीं है, और अगर आप में झिझक रहेगी तो मेरे को कुछ एक चीजें शायद आप बता नहीं पाओगे, तो शायद मेरा डिसीजन गलत हो जाए। सो ये बहुत जरूरी है कि एज एन ऑफिसर यू शुड बिहेव लाइक एन ऑफिसर, irrespective whether you are a male officer or a woman officer. और जो लड़कियां सुन रही हैं इस डिस्कशन को, आपके लिए ये एक बहुत ही सेफ एंड सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन है टू सर्व इन। जितनी रिस्पेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में है, आप शायद उस चीज के बारे में अपने पेरेंट्स को बताइएगा, आप वो शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कितनी रिस्पेक्ट मिलती है इस ऑर्गेनाइजेशन में। I 100% agree with you in this, sir, because I owe myself to this organization. Sir, कारगिल की लड़ाई थी, and since I was
the first lady officer in extreme cold climate area. I was there पहले दिन से sir, till from the time the first shell landed till the time last Pakistani was thrown out dead or alive, Yes. or we saluted the grave. I was there. Good. I was 5 months pregnant, sir. Okay. And going from Leh to Kargil and looking after the logistic points, unit के अंदर सिर्फ commanding officer and one lady officer. Rest all male officers were sent ahead. वो logistic points और आगे आगे उनको भेजा गया था अलग units के साथ. How it was done, sir? मैं आज खुद अपने पे फख्र करती हूँ सर. आपको कई बारी दुनिया में कोई नहीं चाहिए होता बताने के लिए कि आपने अपना काम कैसे किया है. When you can look yourself in the mirror and say, दूसरा चांस मिलेगा तो फिर यही करेंगे. सर 5 महीने का पेट लेकर हाथ में कार्बाइन लेके एक हाथ में दूसरा बच्चा लेकर रात को आप पूरा फेंसिंग आप सिक्योरिटी चेक के लिए निकले हुए हैं. जवान कह रहा है मैडम आप क्यों आए? मैं कहा विल यू आस्क दिस थिंग टू अ मेल ऑफिसर? नहीं मैडम. तो इतना गर्व होता था अपने ऊपर कि जिस दिन के लिए वर्दी पहनी है वो कर रहे हैं. सर अभी पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन लगा और आपने तो आपकी बुक में पूरा चैप्टर लिखा है द मिथ ऑफ लॉकडाउन. सर पैंडेमिक के टाइम पे कुछ बहुत सैड इंसिडेंट्स हुए. आज जितने बच्चे सुन रहे हैं मुझे लगता है कि जैसे पूरे भारत में कितने डेथ्स हुए सर, कितने परिवार के लोग गए. वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल. ब्रेड विनर्स हैव जस्ट गॉन. और बच्चे ओवरनाइट ही बड़े हो गए. ग्रीफ सेटल करना ही नहीं आ रहा, कभी कोपिंग मैकेनिज्म नहीं आता, क्योंकि ये कभी हमने सिखाया ही नहीं बच्चों को. सर यू हैव हैड अ सर्विस स्पैनिंग डिकेड्स. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस कई बार ऐसे मौके आए होंगे, आपने टीम मेंबर्स को खोया होगा, फ्रेंड्स को खोया होगा, हो सकता है कभी नजदीकी फैमिली मेंबर्स को भी खोया हो. सो योर वर्ड्स विल गो अ लॉन्ग वे इन टीचिंग देम, these young ones, how to handle grief, how to handle loss and yet emerge positive. Okay, before I start the point which you made, you might have lost. Yes, I have lost peers, colleagues, injured. I have got myself injured. That's a separate issue. And जैसे आपने बोला कि कैसे उसको हैंडल करते हो, कैसे उस ग्रीफ को, लॉस को समझते हो. मैंने किताब में भी इसके बारे में लिखा है. आई हैव लॉस्ट अ कजन ऑफ माइन, माय मामा जी सन. He also, was killed in action in Kashmir. He got Shara Chakra posthumously. इससे पहले कि मैं बताऊं कि ऑफिसर लॉस को कैसे हैंडल करता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी वीर नारीज या लेडीज कैसे हैंडल करती हैं. मेरे कजन की वाइफ, he had a 3-year-old daughter and 4-month-old son when he died, and he spent the previous time when he went back after seeing his son. वो मेरे पास रुका रात को, वे हमारे घर पे रुका. मैं जम्मू एरिया में पोस्टेड था. फिर वो आगे कश्मीर चला गया. और उसके बाद में उस लेडी ने, जो मेरे कजन की वाइफ है, उसने सिंगल हैंडेडली दोनों बच्चों को ब्रॉट अप या उनको पढ़ाया लिखाया. बेटा इस वक्त कमर्शियल पायलट है, बेटी इंटरनेशनल एयरलाइंस में कार्यरत है, और वो एक प्राउड मदर है. तो इसलिए लॉस इज पार्ट ऑफ लाइफ. How to handle loss is what makes you a better person. Coming back to the army and as an officer, yes, loss होता है. आपके आसपास चोट लगती है, आपके आसपास इंजरी होती है, या किसी की जान भी चली जाती है. उसकी 3-4 स्टेजेस हैं जिसमें हाउ टू हैंडल इट. सबसे पहला होता है कि अगर लॉस हुआ है तो उसको लिमिट करना है लॉस को, ताकि लॉस और ज्यादा ना हो. आपके एज अ लीडर यू हैव टू टेक एक्शंस टू लिमिट दैट लॉस and avoid any further loss. Second point होता है कि जो भी इंजरी हुई है या कैजुअलिटी हुई है उसको evacuate करना है, ताकि उसको immediate first aid मिल सके और उसकी जान बच सके. थर्ड होता है जो बाकी की टीम बची हुई है उसको रीऑर्गेनाइज करना, मोराल को नीचे नहीं होने देना. ये एक लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एंड फोर्थ इज टू नाउ काउंटर अटैक, नाउ हिट बैक. क्योंकि जो आपका एम है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अचीवमेंट ऑफ द एम. जिस कार्य के लिए आप निकले थे वो कार्य पूरा होना बहुत जरूरी है. तो किसी भी कमांडर या लीडर की ये जिम्मेवारी है कि ये चारों एक्शंस अपने होशो हवास
पास में करें। और ग्रीफ एक चीज है, लॉस एक चीज है, फियर दूसरी चीज है, डर। ये कहना गलत बात है कि मेरे को डर नहीं लगता, सबको डर लगता है। लेकिन अगर मैं किसी टोली का कमांडर हूं या लीडर हूं तो मैं अपने डर को कितनी जल्दी अपने कंट्रोल में करके फिर वापस अच्छे तरीके से सोच विचार करना शुरू करता हूं, ये मेरी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और जितनी जल्दी मैं अपने डर पे काबू पा लूंगा, चाहे वो 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, 30 सेकंड है, उतना ही मैं अपनी टोली को नुकसान से बचा सकता हूँ। क्योंकि अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अंडर एडवर्स कंडीशंस, आपकी जो टीम है दे लुक अप टू द लीडर कि अभी कैप्टन साहब या लेफ्टिनेंट साहब या सीओ साहब अभी क्या हुक्म देंगे। और अगर आप डर के कारण आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो कोई ऐसा हुक्म देते हो सकता है आपका नुकसान और भी हो। तो इसलिए जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो आर लीडर्स ऑफ टुमारो, make sure you overcome your fear in the least possible time, carry out the analysis of the situation, good appreciation, and take a very, very rational, considered decision to ensure the safety of your troops and achievement of your aim. So I thought I'll elaborate on a little bit. सर जैसा आपने बोला, एक्चुअली जब एसएसबी के जब ये बच्चे जाते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मिल रहे हैं, जीटीओ टास्क करा रहे हैं, वो इन अ नटशेल यही क्वालिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो जिंदगी का जो आगे आने वाली जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसका एक नटशेल एसएसबी में टेस्ट हो जाता है। जैसे आपने बोला कितनी जल्दी आप रिएक्शन देते हैं, तो रिएक्शन नीजर नहीं होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स होना चाहिए। कूल काम माइंड से दिया हुआ रिस्पॉन्स हमेशा खुद को भी बचाएगा और अपनी टीम को तो बचाएगा ही बचाएगा। सो मेनी टाइम्स पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि एसएसबी में इतने प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, बट दैट इज एक्चुअली द जॉब डिस्क्रिप्शन इन आर्मी। सर एक सवाल आपसे पूछूंगी, लॉकडाउन के टाइम पे और कई बार, सिर्फ लॉकडाउन में नहीं सर, अभी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स ये यंग जनरेशन बहुत फेस करती है, जहां पर द गर्ल इज वर्किंग समवेयर, द बॉय इज वर्किंग समवेयर, येट दे वांट टू कनेक्ट, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बरकरार नहीं रख पाने से कई बार लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, स्ट्रेस में होने लगते हैं। सर यू हैव अ लॉन्ग हैप्पी प्रॉस्पेरस मैरिड लाइफ as an infantry officer. I'm daughter of an infantry officer, so I can totally understand that. As infantry officer, you have had multiple field postings. आप नॉन फैमिली स्टेशन में रहे होंगे, एक्सरसाइजेस पे आधे टाइम बाहर रहे होंगे। How did you manage your long distance relationship with them? So I know it is a little personal question, but what are the strong pillars of relationship? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में, नॉट ओनली द गर्ल एस्पिरेंट्स, इवन द बॉयज हु आर एस्पायरिंग टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, जहाँ जो लड़के भी फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके दिमाग में भी ये बात रहती है कि शायद फौज ज्वाइन करने के बाद में जब मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, क्या मैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ या टुगेदर हम अच्छे से अपना टाइम व्यतीत कर पाएंगे, क्या मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छे से सुपरवाइज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो ये बात बहुत नॉर्मल है ये सोचना, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है, जैसे आपने बताया यू आर 5 months प्रेग्नेंट ड्यूरिंग कारगिल वॉर, आपने बताया बच्चे को हाथ में लेके ड्यूटी चेक करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ, आजकल के जमाने में जबकि बॉय एंड द गर्ल और द हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, इवन staying in the same house, in the same flat, under the same roof, you may not be connecting very well because of your work related issues, the timings. If you're working in a multinational company where your clientele is from the European countries or American countries, you may be working at night, where husband is working during day. When he is working, you are sleeping. When you are working, he is. So this can happen under normal circumstances also. Now again, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि ये इश्यूज हैं। अगर मैं बोलूं कि नहीं ये इश्यूज नहीं है तो वो गलत होगा। हमारे 2 बच्चे हैं, मैं 35 साल से ज्यादा हमारी मैरिज को है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि मेरा कश्मीर में बीता है तो वी हैव बीन सेपरेटेड। मेरे
दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, जब पैदा हुए तो मैं घर पे नहीं था। दोनों बार मेरी वाइफ जब 4 months प्रेग्नेंट थी, उसके बाद में मैं उनसे नहीं मिला हूँ बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट्स। एंड दोनों वक्त, जैसे मैंने बोला, बच्चों के बर्थ पे मैं नहीं था। हमारी बेटी छोटी है, जब उसका बर्थ हुआ तो मैं कहीं ऐसी जगह पे था, अगेन कश्मीर में था, कि मुझे 3 दिन तक ये मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारे बेटी पैदा हुई है। 17 दिन तक मैं अपनी वाइफ से बात नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं आसपास एसटीडी फोन पीसीओ बूथ था ही नहीं। 1.5 महीना 2 महीने के लिए मैं अपनी बेटी से मिल नहीं पाया। जब मुझे छुट्टी मिली उस टाइम पे आके मैं अपनी बेटी से मिला। लेकिन दिस डज नॉट मीन इन एनी वे कि हम लोग एज अ पेरेंट्स वी हैव फॉल्टेड समवेयर और वी हैव बीन फाउंड वांटिंग, या हमारे में कोई डेफिशिएंसी थी टू ब्रिंग अप अ चिल्ड्रन। जो भी रिक्वायरमेंट्स बच्चों की होती थी, वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इसमें इतना दम है ना, ये आपकी एब्सेंस के दौरान भी आपकी फैमिली को लुक आफ्टर करती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, किसी ऑफिसर की, ब्रदर ऑफिसर की बेटी आईटीओ में दिल्ली के आसपास के उसकी कार या स्कूटर खराब हो गया। तो आई वाज इन दिल्ली, सो दिस ऑफिसर इज पोस्टेड समवेयर आउटसाइड दिल्ली। तो उसने मुझे कॉल किया, कहता टाइनी बेटी ना वो आईटीओ के पास में, शी इज स्टक अप, कैन यू हेल्प? I called up someone in Delhi, and within the next 20 minutes, there was a vehicle and a person there to go and assist that girl. This is how this family called Army or Navy or Air Force works for you. They give you so much of comfort and feeling of safety and looking after. You can't imagine. आपके परिवार में, घर में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई फैमिली मेंबर भी है, वो शायद आपको इतने अच्छे से नहीं लुक आफ्टर करेगा जितने से यहाँ पे अनजान लोग आपको लुक आफ्टर करते हैं। तो ये एक सच्चाई है। और देखिए, अगर ये फौज की नौकरी करनी है, इज्जत बहुत है, तो इज्जत बहुत है, लेकिन डिफिकल्टीज या चैलेंजेस भी हैं। लेकिन वो चैलेंजेस आर फार 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 बिलो द रिस्पेक्ट विच यू गेट। और अगर मेरे को आज दोबारा से कोई बोले भी आप इसका नाप तोल कीजिए, एंड आई नो मेरा डिसीजन क्या है। यस, देयर इश्यूज, देयर आर हार्ड टाइम्स, बट देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस टू मेक श्योर योर फैमिली इज कंफर्टेबल, दे आर लुक्ड आफ्टर। Very right. Very right, sir. It is. I lost my father, sir, when I was just 7 years old. My mother grew up 3 daughters. रिश्तेदार पीछे थे सर, लेकिन फौज आ गई और फौज ने एकदम ऐसे थाम के रखा कि जिंदगी का वो कठिन समय निकलता गया सर। ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड, बट यू नो दैट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सपोर्टिंग यू। एब्सोल्युटली। या सर, इट्स बीन वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, पर एक रैपिड फायर है सर अभी आपके लिए। या प्लीज। Sir, please brace yourself, and Quizmaster's decision is final, sir. Okay. Done. Sir, so the first question of rapid fire, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी सब ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सवाल आएंगे। Sir, your first posting. Sir, your first posting. Sikkim, high altitude, 16,000 feet, 20 feet of snow. Your first buddy and his village. Ram Singh. And village is near Gurgaon. Okay. What is your shoe size, sir? 9 grew to 10. Now I weigh 10.5. Okay, sir. Sir, what is length of NDA corridor in terms of front roll? I think 52 front rolls. That's what I remember. But my length was little shorter than the other cadets, because I used to probably take little longer. But of late, I very smartly put, sir. And by the way, people who are listening, the length of corridors in NDA is never measured in meters. It's always measured in front rolls. Front roll. Sir, what is seventh heaven in NDA? Seventh heaven is in NDA. In the NDA, we have a wire mesh in place of, you can say, these ventilators. And those wires are there, crisscross wires. And they're 1 inch by 1 inch square. And the 7th horizontal wire, you are told to jump, put your fingers into that wire mesh at the 7th level, and then hang. And those wires keep going into your fingers
and it's called now you are enjoying the seventh heaven. Sir, how many false peaks while doing Bhadraj? Oh, Badraj, it's the exercise is called Golden Ring, and I think that more than 10. I don't remember the correct number, but they're false Sir. crests because every time you feel you are reached, it's a very tough climb. Every time you see a Sir. peak in front, you say, oh, there it is, now I reached Badraj. And once you reach there, there's another crest. So the false crests which keep coming one after the other in the exercise called Sir. the Golden Ring. It's in the second term IMA. Yes, sir. Sir, very interesting question now. Why taste of tipsy pudding enhances in camp rovers campfire? Oh my God. This is something I have not had a pudding or a dessert more tastier than the tipsy pudding in NDA camps. And can you Sir. beat it? The tipsy pudding is made in tubs there. The water tubs which you have seen 2 feet high and 5 feet in diameter. Tipsy pudding is put in those tubs and people take it not with spoon and all. People take the plate, dig the plate inside. And I'm not talking of a dessert plate. I'm talking of the main course plate. Sir. They dig the plate and take the scoop and then they eat like this. It is the most tastiest pudding I had in my life. And the question you ask why it's so tasty, because it's at the end of a camp where all your mental, physical, all faculties have been tested to the hilt. And you're so drained out of energy that anything coming your way is welcome. But tipsy in NDA is the best I had ever. Sir, I will leave you with that tastiest flavor, to savor. And I will say thank you to you, sir, for this wonderful life. लेकिन जब तक एक फौजी पेप टॉक नहीं दे तब तक हम किसी कंपटीशन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते सर. चाहे वो फुटबॉल मैच हो, चाहे वो पासिंग आउट परेड हो, पेप टॉक बहुत जरूरी है सर. तो आज इन बच्चों को इनके जिंदगी के लिए आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए सर. एक पेप टॉक के साथ में we will call this session to a close, sir. Okay, since most of the audience are young boys and girls, you ought to be a good citizen. You're joining the academy, you're preparing for academy is one part. It's not that कि जो जवान या ऑफिसर बॉर्डर पे खड़ा होता है वही सिर्फ देश सेवा करता है. हर एक नागरिक, हर एक citizen contributes in his own small ways. और military power is not the only power. There's something called comprehensive national power. उसमें military पावर शामिल है, उसमें देश की इकोनॉमिक पावर शामिल है, उसमें देश की डिप्लोमेटिक पावर शामिल है, उसमें बाकी जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम एवरीवन कंट्रीब्यूट्स. तो जिंदगी में जो भी कर रहे हो अच्छे से करो so that you contribute to the comprehensive national power. Sorry. And to be a good citizen, again, you don't have to be a disciplinarian, you don't have to do a drill in the morning, you have to do small things. Obey the traffic rules, don't jump at traffic light, don't throw the litter on the roadside, carry a litter bag in your car. You take a Pepsi or a burger, put that trash in that trash bag, come back home, put it in the dustbin, or at a place where you halt. If there's a dustbin, empty it out there and then move forward. Small things. Keep your environment clean. आप अपने घर को साफ रखिए, आपका मोहल्ला साफ रहेगा, आप मोहल्ले को साफ रखिए, आपका शहर साफ रहेगा, शहर को साफ रखिए, आपका देश साफ रहेगा. Civic sense, traffic sense, traffic rules. These are small things which when you go abroad, हमारे ही इंडियंस बाहर जाके इतने अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, इतने अच्छे से सफाई रखते हैं. बाहर की बात करें, कैंट के अंदर आप आइए, जो भी आप कैंट के अंदर घुसते हो, गेट के अंदर आते ही आपको एक पत्ता नहीं मिलेगा वहां पे कि जो इधर ना कोई खाली बोतल मिलेगी, ना कोई रैपर मिलेगा चिप्स का. क्यों? इसलिए नहीं कि वहां पे बहुत सारी मैन पावर लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है सफाई के लिए, इसलिए कि वो अंदर से एक फीलिंग है कि मुझे अपने इलाके को साफ रखना है. अगर एक फौजी अपने कैंटोनमेंट को साफ रख सकता है तो मेरे हिसाब से देश का हर वासी, हर बच्चा अपने एरिया को साफ रख सकता है. प्लीज डू दैट, कंट्रीब्यूट टू मेक दिस ब्यूटीफुल कंट्री इवन मोर ब्यूटीफुल. थैंक यू. Thank you so much, sir. They were very, very encouraging words. And we all are looking forward for your book, sir. कितने गाजी आए, कितने गाजी गए. और जितने लोग सुन रहे हैं, please know that if you pre-book this wonderful
wonderful, amazing book that is coming up. तो सर खुद उस बुक को साइन करके वो बुक आपको मिलेगी, सर के सिग्नेचर्स के साथ मिलेगी. तो यू कैन प्री बुक द कितने गाजी आए, कितने गाजी गए. सर नाम ही एकदम इतना जबरदस्त है. पर सर ये बताइए, गाजी आए गाजी गए तो ठीक है सर, पीओके कब आएगा सर? आज ही किसी ने ये सवाल, इनफैक्ट ये सवाल मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था, बच्चे ने, गुजरात में एक यूनिवर्सिटी में टॉक किया. तो सर without giving much details of, because I am aware of the details, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का चीफ रह चुका हूँ, मैं 15 कोर कमांडर रह चुका हूँ. तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, हर चीज का, हर काम का एक वक्त होता है, सही वक्त पे पीओके भी आएगा. पीओके भी आएगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. इट्स बीन अ प्लेजर hosting you, and you decided to do your first Instagram live with me. मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती सर. I am so touched. Thank you so much, sir. Thank you, Thank you, Yashika, and thank you everyone listening, and thank you all the young boys and girls. Have a wonderful day. Have a wonderful life. Never give up. There is always a better way to do a thing. If you find you have not done it the best way today, so never ever give up. Failure is not an option. Success is the only aim which you have to look for. And wishing you all the very best in whatever profession you choose. Be a good citizen. Be a good human being. That's it. All the very best. Thank you, Yashika. Thank you very much. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Thank you, sir.